Assalamu alaikum class. जी बेटा we are studying the first chapter of linguistics, and in this we had finished up three topics, which were language and its characteristics. Then we had studied linguistics and its definitions, and then we had studied linguistics as a science. We have started next topic, and in it we are going to study some major principles and major concepts of linguistics. This is on page number 19. You keep your book open, and we will study the first topic today. And first there is some introduction about Ferdinand de Saussure. The name of the topic is Saussure and his main contributions. We will study it from the book, and if there is some, obviously there will be some explanation needed, and I will explain it the way it will be easy. So, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure was born in 1857 and died in 1913. Was a Swiss linguist who occupies an important place in the history of linguistics and is generally considered the founder of modern linguistics. यानी कि जो जदीद लिंग्विस्टिक्स है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, उसका फाउंडर फर्डिनेंड de Saussure को कहा जाता है. तो it was he who first of all emphasized the importance of viewing language as a living phenomena. He was the founder of a theoretic foundation to the new trend in linguistic study. That he was the one who made it more like a branch of knowledge. That linguistics was not taken up as a serious subject. There was a study of language. That there was a historical study of language, that how language was developing, especially in Europe. So what happened that after his contributions, it was taken up as a branch of knowledge and a separate field of study which we call linguistics. And European scholars have seldom failed to consider his views when dealing with any theoretical problem. His impact is so huge कि आप literary theory देख लें, जिसे criticism भी कहते हैं, psychology देख लें, architecture देख लें, या फिर दूसरी ब्रांचेस देख लें, जितनी भी, उनमें इसका जो है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. इसकी जो थेरीज़ हैं ये बेसिकली 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है. इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. तो जोनाथन कलर 1976 सेज फर्डिनेंड de Saussure इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. के वो लिंग्विस्टिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, इसका जो फादर है या उसका फाउंडर है वो फर्डिनेंड de Saussure है. The man who reorganized the systematic study of language. कि उसने लैंग्वेज की स्टडी को सिस्टमैटिक बनाया और इसे रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि ही टर्न्ड इट इनटू अ सब्जेक्ट, इनटू अ डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज इन सच अ वे एज टू मेक पॉसिबल द अचीवमेंट्स ऑफ 20th सेंचुरीज लिंग्विस्ट. यानी कि इसने जो फाउंडेशन बनाई, उसी वजह से बाद में जो लोग आए उन्होंने लिंग्विस्टिक्स में इतनी कंट्रीब्यूशन की, जिसमें ज़ाहिर आप जानते हैं कि सबसे बड़ा नाम नॉम चॉम्स्की का है. तो ज़ाहिर है जिसने बुनियाद डाली उसको हम कैसे उसके रुतबे को कम कर सकते हैं. तो ही इज़ सेड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. तो उसने इस लिंग्विस्टिक्स का जो नॉलेज है उसको सिस्टमैटिक किया और उसको रीऑर्गेनाइज किया, and he turned it into a separate discipline of study. This alone would make him a modern master of a discipline which he made modern. कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको उसने स्टार्ट किया, उसको टेकअप किया और फिर उसे मॉडर्न भी बनाया. De Saussure's contribution to modern linguistics was responsible for 4 key directions in the study of language. He distinguished between synchrony and diachrony. ये एक टॉपिक है, ये आज हम पढ़ेंगे भी. सिंक्रोनी और डाइक्रोनी में उसने डिफरेंस बनाया. लैंग और पैरोल में, देन बिटवीन सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, एंड बिटवीन सिंटिग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक.
So these are the four major contributions which were made by him, and we will study them one after the other. So he also contributed by describing the distinction between syntagmatic and paradigmatic, the theory of associative value. Socio's contribution to linguistics are given below. यानी कि now we are going to move on to page number 20, and this is where we are going to start the first topic, which is synchrony and diachrony. जी, तो synchrony क्या है? First we will study that what actually synchrony is. So Saussure proposed that language as a system of signs, यानी कि ये जो साइन और सिग्निफायर और सिग्निफाइड है उसमें हम खुलकर तफसील से इस पर बात करेंगे कि साइंस क्या होते हैं। यानी साइन ये होता है वो जो आर्बिट्रेरीनेस हमने डिस्कस किया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज में, कि लैंग्वेज साइन है कि ये लेबल है, यानी कि वी टेक अप सर्टन लेबल्स और वर्ड्स फॉर सर्टन थिंग्स और आइडियाज़। तो उसने कहा कि एक सिस्टम है साइंस का दैट कैन बी स्टडीड एज अ कंप्लीट सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप किसी भी वक्त इसको एक पूरे सिस्टम के तौर पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आज हम कहें कि हमने आज स्टडी करना है कि मौजूदा जो इंग्लिश है वो कैसा सिस्टम है, उसमें कौन सी साउंड्स यूज़ होती हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं, उसकी ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसकी पूरी जो एक डिटेल्ड हम स्टडी है वो कर सकते हैं। लाइक चेस के शतरंज की तरह, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ हाउ पीसीज मूव। यहाँ पीसीज से मुराद हैं वर्ड्स, क्योंकि शतरंज की हम मिसाल ले रहे हैं तो उसमें वो पीसीज जो होते हैं वो मूव करते हैं ना, उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे हम प्लेस करते हैं। तो इसी तरह है कि हाउ द वर्ड्स एक्ट, जो वर्ड्स हैं लैंग्वेज में वो किस तरह फंक्शन करते हैं, एंड द पोजीशन ऑफ ऑल पीसीज रिलेटिव टू वन अनदर। और ज़ाहिर है वो जिस तरह शतरंज होती है कि एक आपने मोहरा चलाना है तो उसका दूसरों के साथ भी रिलेशन होता है, इसी तरह एक वर्ड का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन होता है। ये इस तरह सिस्टम है दैट वन वर्ड इज सेपरेट बट इट्स ऑल्सो लिंक्ड विद द अदर वर्ड्स ऑल्सो, आई मीन इट्स रिलेटिव टू द अदर वर्ड्स। The shape of each piece is only important in that its potential can be recognized. तो एक लफ्ज़ है या कोई मतलब पहले हम मिसाल ले लेते हैं शतरंज की, तो वो जो पीस हम मूव कर रहा चाह रहे हैं वो हम देखते हैं कि इसका अपना पोटेंशियल क्या है, ये क्वीन है, किंग है, और इनका क्या रोल है इस गेम में। इसी तरह हम देखते हैं कि कोई भी वर्ड है तो उसके मीनिंग क्या है, उसके पॉसिबल मीनिंग कितने होते हैं और उनके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप किन किन जगहों पे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं, और यानी कि उनका जो पोटेंशियल है, यानी कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वो भी उनके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको देखें कि अ सिंक्रोनिक रिलेशनशिप इज़ वन वेयर टू सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कि दो मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन वो अलग-अलग एक ही वक्त में मौजूद हैं। जैसे कि मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश हैव अ सिंक्रोनिक रिलेशनशिप, यानी कि हैं तो दोनों ही इंग्लिश, लेकिन वो एक दूसरे से किस तरह रिलेट करती हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये होता है सिंक्रोनिक स्टडीज़। को आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ कि सिंक्रोनी या सिंक्रोनिक रिलेशनशिप ये होता है कि एट गिवन पॉइंट, फ़र्ज़ करें कि आज हम बैठ के कहते हैं जी देखना है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश है चीज़ें एक ही होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा था जूम की क्लास में कि आप हमारी पंजाबी को अगर कंपेयर करना चाहते हैं इंडियन पंजाब की जो पंजाबी है उससे, तो वो एक जैसी चीज़ों का आप करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे कि इनके दरमियान है दोनों ही पंजाबी, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है, यानी कि लैंग्वेज एक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के साथ पर्शियन को या इटालियन को कंपेयर करना शुरू कर दें, कि लैंग्वेज एक ही रहेगी। बस हमने देखना है कि वो एक ही जैसी चीज़ दो मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि वो कैसे मिलती जुलती हैं। तो एट गिवन पॉइंट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट ओनली, दैट हाउ द लैंग्वेज इज़ वर्किंग इन अमेरिका एंड द ग्रेट ब्रिटेन एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, इस वक्त कैसे वो एग्जिस्ट कर रही हैं, इसी इसको हम स्टडी करते हैं।
तो देखें जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डायक्रॉनी। तो डायक्रॉनी इज़ द चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ओवर टाइम, के वक्त गुज़रने के साथ साथ जो मीनिंग्स हैं उनके अंदर क्या चेंज आ रही है, जिनके वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में कैसे तब्दीली आ रही है। जैसे ये देखे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल in the way that magic meant good in youth culture for a period during the 1980s, के 1980 की दहाई में मैजिक का मतलब होता था अच्छा, कि यू हैव डन मैजिक, इसका मतलब था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बियॉन्ड, तो बियॉन्ड के मानी में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वो कम इस्तेमाल होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मैजिक का वर्ड जो है वो जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले जूम की क्लास में भी बेटा एग्जांपल दी थी कि जो वर्ड है मिस्ट्रेस, वो आज हम इस्तेमाल करते हैं बीवी के लिए, जबकि ये महबूबा के लिए इस्तेमाल किया जाता था शेक्सपियरियन पीरियड में। तो डायक्रॉनी में हम स्टडी करते हैं कि हाउ द वर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग देयर मीनिंग्स, के उनके मीनिंग्स किस तरह बदलते रहते हैं या मॉडिफाई होते रहते हैं। तो इन दस द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ हाउ इट विजिबली चेंजेस इन यूजेज, इट इज़ बेस्ड इन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या आप डिक्शनरी खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके वर्ड्स जो थे, उसका पुरानी इंग्लिश में पहले इसका मानी क्या था और अब ये किस मानी में इस्तेमाल हो रही होती है। और उसमें जो वेबस्टर्स की डिक्शनरी, मैंने ऑनलाइन डिक्शनरी आपसे कहा था कि इंस्टॉल कर लें उसकी ऐप, उसके अंदर बेटा वो आखिर में एटमोलॉजी भी दी गई होती है। एटमोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ द रूट्स ऑफ द वर्ड्स, कि ये जो वर्ड है ये कैसे वजूद में आया और पहले ये कब इस्तेमाल हुआ। और साथ साथ ये भी जैसा हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं कि वर्ड्स के मीनिंग के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या चेंज आई। तो ये होती है डायक्रॉनी। तो अब ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ये ज़रा देखें कि डायक्रॉनिक रिलेशनशिप इज़ वेयर रिलेटेड थिंग्स एग्जिस्ट सेपरेटेड बाय टाइम। देखें, 12th सेंचुरी इंग्लिश एंड 21st सेंचुरी इंग्लिश हैव अ डायक्रॉनिक रिलेशनशिप, यानी उसमें आप दो मुख्तलिफ जगहों पे बोली जाने वाली ज़ुबानें, जो एक ज़ुबान है लेकिन मुख्तलिफ जगह पे बोली जा रही है, तो उसको आप एट अ गिवन टाइम, यानी कि इस वक्त हम चाहते हैं कि हम स्टडी करें, वो होगी सिंक्रोनी। और डायक्रॉनी में एक ही लैंग्वेज को हम देखते हैं कि आज जो बोली जा रही है इसका आज से कुछ 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, जिस तरह ये एग्जाम्पल है कि आज की इंग्लिश को हम कंपेयर करते हैं 12th सेंचुरी की इंग्लिश के साथ, के उनका आपस में क्या रिलेशन था, यानी अब उसमें क्या तब्दीलियाँ आ गई, उसकी मीनिंग्स में क्या चेंज आ गई, उसकी साउंड्स कैसे बदल गई, उसकी स्पेलिंग्स कैसे चेंज हो गए। तो ये जो एक लैंग्वेज के अंदर जो हिस्टोरिकल हम स्टडी करते हैं वो डायक्रॉनी होती है, और एक ही लैंग्वेज जो दो मुख्तलिफ जगह पे बोली जा रही होती है तो उनके रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि ये हमने मिसाल पढ़ी अमेरिकन इंग्लिश की, तो अमेरिकन इंग्लिश कहाँ से आ गई, ये यही अंग्रेज़ थे बरतानिया वाले जो कि उठ के अमेरिका में जाके आबाद हो गए, और वहाँ पे इन्होंने जो स्याह फाम थे उनको कत्लेआम किया, और उनकी जो उस वक्त मेजॉरिटी थी उसको माइनॉरिटी में बदल दिया। और ज़ाहिर इनकी जो बोली थी, जो इनकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, लेकिन उनकी अमेरिका की वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनकी वजह से उनके अंदर चेंजेस आई, और कुछ चेंजेस उन्होंने ख़ुद भी कर ली। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड ग्रास हम बोलते हैं, जबकि अमेरिकन में ग्रेस बोला जाता है। तो ऐसी जो वेरिएशन आई है, जो चेंज आती है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो सिंक्रोनी होती है। लेकिन एक ही लैंग्वेज, वो चाहे हम अमेरिकन इंग्लिश ले लें या ब्रिटिश इंग्लिश की हम एग्जांपल ले रहे थे कि आज जो ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है उसके दरमियान और जो 12वीं सदी में इंग्लिश बोली जा रही थी उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। तो ये जो स्टडी होगी ये होगी डायक्रॉनी। The next heading is synchrony and diachrony in linguistics. According to the method, range and scope of its study or the focus of interest of the linguist, linguistics can be classified into different kinds, the chief of which are diachronic linguistics and synchronic linguistics. Diachronic linguistics, ये पेज नंबर 21 का बेटा पहला पैराग्राफ,
कि diachronic linguistics is the kind in which we study the historical development of language through different periods of time. For example, we study how French and Italian have grown out of Latin. कि डायक्रॉनी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये अभी जो डिस्कस किया था कि एक लैंग्वेज की हमने हिस्ट्री हम देखते हैं, तो ये हम शुरू से देखेंगे जी, लैटिन से फ्रेंच और इटालियन कैसे ग्रो उन्होंने किया, कैसे डेवलप हुई. द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम आर ऑल्सो स्टडीड अंडर दिस काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. यानी कि डायक्रॉनी या डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स को, डायक्रॉनी एक जो कॉन्सेप्ट है या जिसे हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी है बेटा. कि हम देखते हैं कि इसने कैसे अपने आप को एक लैंग्वेज ने चेंज किया, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि ये है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. इट कन्फाइंस, यानी अपने आप को ये महदूद रखती है, लिमिट करती है, itself to the study of how a language is spoken by a specific speech community at a particular point of time. कि एक ख़ास जो इलाका है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है जो रह रही है, वो उस लैंग्वेज को इस वक्त जब हम स्टडी कर रहे होंगे उस वक्त वो कैसे उसको बोल रही है, उसको कैसे यूज़ कर रही है. यानी कि हम कहते हैं जी पाकिस्तान में अगर कोई लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वह कैसे बोल रहे हैं, तो इस वक्त अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स होगा कि एट अ गिवन पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो एक स्पीच कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी जो कि ख़ास ज़ुबान बोल रही है, वो कैसे बोल रही है, उसकी जो स्टडी होगी, जो वो स्टडी होती है वो आप जानते हैं बेटा कि हम उसकी साउंड्स को स्टडी करते हैं, उसके वर्ड्स को करते हैं स्टडी, उसकी ग्रामर को करते हैं. तो डायक्रॉनिक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स. तो जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है उसको हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, और जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स स्टडीज लैंग्वेज चेंज एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स स्टडीज लैंग्वेज स्टेट्स विदाउट एनी हिस्ट्री. ये उसकी क्या हालत है उसकी हिस्ट्री के बगैर. यानी कि जो हिस्टोरिकल स्टडी होगी वो बेटा आपकी डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स होगी, और एट प्रेजेंट आप उसकी मौजूदा हालत और मौजूदा उसकी जो कंडीशन है उस पर जो स्टडी करेंगे वो होगी उसकी सिंक्रोनिक स्टडी या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. जी, अकॉर्डिंग टू C.F. Hockett, the study of how a language works at a given time regardless of the past history or future destiny. कि हम लैंग्वेज को इस वक्त अगर स्टडी कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज एक स्पीच कम्युनिटी में कैसे वर्क कर रही है, इसको कैसे बोला जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पास्ट हिस्ट्री. कि इस चीज़ को हमने नहीं सोचना कि इसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी थी, ये कैसे डेवलप हुई, और फ्यूचर डेस्टिनी और इसका मुस्तकबिल कैसा है, इसकी किस्मत कैसी है आने वाले दिनों में. इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. यानी सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से मुराद ये है कि हमने इस वक्त लैंग्वेज की क्या हालत है, उसकी फोनोलॉजी कैसी है, उसकी फोनेटिक्स कैसी है, उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उसको कैसे बोला और इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच हैबिट्स चेंज एज टाइम गोज बाय इज कॉल्ड हिस्टोरिकल और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. के हमारी स्पीच हैबिट्स कैसे बदलती हैं, कि वर्ड्स के मीनिंग्स में कैसे चेंज आती है, ये सारी जो ओवरऑल हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल या डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. जी बेटा, वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज़ सिंक्रोनी एंड डायक्रॉनी एंड हाउ इट वर्क्स इन लिंग्विस्टिक्स. तो पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ यहाँ से अभी हम ये स्टार्ट करेंगे. द डिस्टिंक्शन सिंक्रोनी एंड डायक्रॉनी refers to the difference in treating language from different points of view through the historical character of a language. Though the historical character
of a language cannot be ignored, its present form being the result of definite historical processes। यानी ज़ाहिर है कि एक ज़ुबान जो आज बोली जा रही है तो वो हिस्टोरिकली एक प्रोसेस के ज़रिए मौजूदा हालत में आई है, तो उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई और इसने अपने आप को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट understanding of it to concentrate on the units of its structure at the present moment. Some scholars do not see the two approaches apart, के कुछ scholars कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें को अलहदा नहीं है, कि they assert that it's a mistake to think of descriptive and historical linguistics as two separate compartments. However, on the whole, the two areas are kept apart and one is studied to the exclusion of the other. Synchronic statements make no reference to the previous stages in the linguistics. कि सिंक्रोनिक ये नहीं देखती कि इसकी प्रीवियस जो स्टेजेस थी लैंग्वेज की वो कैसे गई, ये कैसे डेवलप हुई। Linguistic studies in the 19th centuries were historical in character। कि जो 19th सेंचुरी में जितनी डेवलपमेंट हुई या लिंग्विस्टिक स्टडी हुई, ज़ाहिर है ये फर्डिनेंड डे सोसियर से आने की से पहले की बात है, तो वो हिस्टोरिकल थी। दे ओरिजिनेटेड एट पार्ट ऑफ द जनरल हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस इनटू द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़ स्पेशली वेस्ट एशिया, इजिप्ट एट्सेट्रा। कि उन्होंने स्टडी किया हिस्टोरिकली कैसे ये लैंग्वेजेस इनके ओरिजिन क्या थे, यानी कि ये लैंग्वेजेस शुरू कहाँ से हुई और इसके कल्चर या कम्युनिटीज़ की जो डेवलपमेंट थी वो कैसे हुई, ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया और इजिप्ट वगैरह में। सच फिलोलॉजिकल रिसर्च व्यूड लैंग्वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेस एंड अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड रिलेशन अमंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। के दूसरी ज़ुबानों से क्या इन्होंने कोई अल्फाज लिए या दूसरी ज़ुबानों का इन पर क्या असर हुआ। इनकी एक लैंग्वेज है, उसका ओरिजिन वो स्टार्ट कैसे हुई, उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती रहीं, दूसरी ज़ुबानों के उन पे क्या असरात हुए। तो लैंग्वेज फैमिलीज़ वर डिस्कवर्ड एंड जेनेटिक अफिनिटीज़ आइडेंटिफाइड। ये लैंग्वेज फैमिलीज़ उन्होंने बनाई सभी ज़ुबानों की, उनको इकट्ठा किया। जिस तरह हमारी ये पंजाबी है ये इंडो यूरोपियन फैमिली से है, इंग्लिश भी इंडो यूरोपियन फैमिली से है और उर्दू भी। और इस तरह जो साउथ इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है या कन्नड़ है, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको द्राविडियन लैंग्वेजेस कहते हैं, यानी कि इनकी फैमिली अलहदा है लैंग्वेज फैमिली। लैंग्वेज फैमिली में वो लैंग्वेजेस हैं जिनके आपस में किसी ना किसी तरह से कोई रिलेशन है, ये फिर हम कभी डिटेल से बात करेंगे। एनी हाउ फॉर ज़िरमंस्की डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स वाज अ ग्रेट डिस्कवरी ऑफ द 19th सेंचुरी। तो डायक्रॉनिक जो लिंग्विस्टिक्स होती है ये आप जानते हैं कि ये होती है कि इसकी हिस्टोरिकल स्टडी, यानी कि वो सारी जो हिस्टोरिकली उन्होंने 19th सेंचुरी में ज़्यादा फोकस रहा उनका। विच डेवलप्ड, ये बोर्ड में जो आ गया उसका ज़िरमंस्की का कि विच डेवलप्ड सो पावरफुली एंड फ्रूटफुली फ्रॉम द 1820s to the 1880s. This discovery enabled linguists to explain modern languages as a result of law-governed historical development। यानी कि इस डिस्कवरी की वजह से हमने देखा कि किस तरह हिस्टोरिकली ये लैंग्वेजेस डेवलप होती गईं। On a closer look, one realizes that without a good synchronic work, valid historical या diachronic postulations are not possible. In other words, a good historical linguist needs to be through descriptive scholars too। यानी कि एक अच्छा जो स्कॉलर होगा वो दोनों तरह से स्टडी करेगा कि एक लैंग्वेज को मैं इस वक्त अगर स्टडी कर रहा हूँ, इसकी फोनोलॉजी को यानी इसकी लैंग्वेज इसकी साउंड्स को, इसके स्ट्रक्चर्स को जिसे हम सिंटैक्स या ग्रामर कहते हैं, या इसकी दूसरी एस्पेक्ट्स को, इसके वर्ड्स को, उसकी फॉर्मेशन को और उनके मीनिंग को फ़र्ज़ करें मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये ज़रूर देखूँगा कि इस लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, ये कब से शुरू हुई, अब इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई, इसके अंदर क्या चेंजेस आई और ये अब कैसे है। यानी कि उनके एक राय ये है, यानी अभी हम जो पढ़ रहे थे कि देयर इज़ अ व्यू दैट अ गुड स्कॉलर नीड टू बी एफिशिएंट इन बोथ वेज, के उसे सिंक्रोनी का भी पता होना चाहिए और डायक्रॉनी का भी।
तो यहाँ पे आपने ये देखें लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, फिर ये रीप्रिंट हो गया हमारी बुक में। तो ये पेज नंबर 22 का जो एंड है यहाँ पे आ गया ये हेडिंग के लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। इसको आप काट दें अपनी लेड पेंसिल से। 23 भी वही को भी काट दें, 24 को भी, 25 को भी, 26 पे आ जाए बेटा। कम टू पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में आएंगे तो आपके सामने एक ग्राफ आ गया। तो जी बेटा ये जो ग्राफ है इसमें आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है x और ये नीचे y, और दूसरी जो लाइन है वो a और b है। तो जो a और b वाला है इसे हम कहते हैं सिंक्रोनिक एक्सिस ऑफ साइमल्टेनिटीज या स्टेटस एक्टिव, जिसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लैंग्वेज है वो टोटली जो लैंग्वेज है वो x से लेके y तक जा रही है, कि ये पूरी लैंग्वेज आज से लेके x से लेके y तक, यानी कि ये लैंग्वेज शुरू से लेके अब तक उसकी क्या सूरत हाल है, ये उसकी हिस्टोरिकल स्टडी है। जैसे लिखा हो ना कि एक्स वाई डायक्रॉनिक एक्सिस ऑफ सक्सेशन, कि वो सक्सेशन वाइज चल रही मूविंग एक्सिस है, कि हाउ द लैंग्वेज वाज डेवलपिंग ओवर द टाइम, दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। दरमियान में एक पॉइंट को हमने कहा जी हमने फ़र्ज़ करें 19th सेंचुरी में देखना है कि ये लैंग्वेज कैसे बोली जा रही थी, तो वो आपकी सिंक्रोनिक एक्सिस होगा। यानी कि जो स्टेटिक है, जो डिस्क्रिप्टिव जिसे हम कहते हैं, या सिंक्रोनिक एक्सिस कहते हैं, जो कि स्टेटिक होता है जो मूव ना करे, यानी कि एक पॉइंट। तो ओवरऑल एक लैंग्वेज ज़ाहिर है वो तो बोली जा रही है कई सदियों से, तो वो एक्स वाई पे हम देखते हैं कि वो सारी लैंग्वेज आ रही। दरमियान में एक पॉइंट हमने पकड़ा जी, हमने यहाँ से, यानी कि इस ड्यूरेशन में लैंग्वेज को किस तरह बोला जा रहा था, इसके वर्ड्स कैसे थे, स्पेलिंग कैसे थे, ग्रामर कैसी थी, इसकी जो स्टडी होगी वो सिंक्रोनी होगी। तो ये ग्राफ आपने बनाना है पेपर में भी, और ये सिर्फ इतना ही है, इसमें मुश्किल नहीं है, इसको सीधी सीधी लाइनें हैं। तो जो ए बी है वो सिंक्रोनिक एक्सिस है, जिसे स्टेटिक एक्सिस भी कहते हैं, और जो एक्स और वाई है ये है डायक्रॉनिक एक्सिस ऑफ सक्सेशन, जिसे मूविंग एक्सिस हम कहेंगे। तो इसकी आगे एलेबरेशन है, इसको बेटा हम देखते हैं। द फिगर अबव शोज द डिस्टिंक्शन diachronic axis या XY has been considered moving and the synchronic axis static. It was Swiss linguist Ferdinand de Saussure who first coined these terms and established the distinctions. As the Russian linguist V.M. Zirmansky observed, in de Saussure's conception, synchrony is a language considered as a system of static oppositions resting on a single temporal plane. A static two dimensions cross section. The principles that introduce this dichotomy enable us to obtain, according to Wilkins, particularly accurate information about a language in its current usage. For Saussure, historical considerations are irrelevant to the investigation of a particular temporal states of a language. कि अगर हम सिर्फ एक वक्त की मतलब जैसे आप कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसी एरिया को स्टडी करेंगे जिस तरह ग्राफ में बताया गया। वी आर नॉट कंसर्न विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, बट Saussure's analogy of chess breaks at the point that players determine the course of any particular game that is being played in opposition to one another with the reference to the reorganized goals. As far as we know, there is no डायरेक्शनलिटी इन द डायक्रॉनिक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये आखिर वाली जो तफसील है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ ये इसको एक्सप्लेन कर दें सादा लफ्ज़ों में, जिस तरह मैंने शुरू में बेटा आपको बताया कि जो लैंग्वेज आप स्टडी कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं जिसे हम सिंक्रोनी कहते हैं, वो ए और बी है। इसमें आप कंसर्न नहीं है कि इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, यानी वो एक्स है और आगे है वाई, कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कि हाउ इट्स गोइंग टू व्हाट्स गोइंग टू बी द डेस्टिनी ऑफ दैट लैंग्वेज। बस इस तरह से डेवलप कर दें। और अगर आप ज़ाहिर है स्टडी करना चाहते हैं इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो वो आप एक्स से लेकर वाई तक सारी स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ इट, होपफुली इट वुड हैव बीन वंडरफुल टाइम। तो ये आसान से टॉपिक्स हैं। ये आखिर वाला जो पैराग्राफ मैंने कहा इसको आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सादा लफ्ज़ों में इस ग्राफ को बता दें कि अगर आप, मैं फिर उसे रिकैप कर देता हूँ कि सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, कि वी आर स्टडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जो डायक्रॉनिक होती है वो उसकी थ्रू आउट हिस्टोरिकल स्टडी होती है। तो ये चाहे आप ये लिख भी लें, डायक्रॉनिक एक्सिस के ऊपर हिस्टोरिकल लिख लें, और ये सिंक्रोनिक एक्सिस जो हैं, ये जो लिखा गया है
सिंक्रोनिक एक्सिस ऑफ साइमल्टेनिटीज़ या स्टेटेड एक्सिस, इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव लिख लें। तो ये रहा आपका ग्राफ कि अगर आप पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो वो सिंक्रोनिक होगा। उसमें आपको ये कंसर्न नहीं है कि इसके पास्ट में इस लैंग्वेज को पास्ट में कैसी थी और फ्यूचर इसका क्या होगा। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्टडी इट थ्रू आउट फ्रॉम start to the end. So this is it for today, and if you find